management. So what it is, and actually we have seen one more case before, and today we have seen the case study of project stakeholder manager, what it is. Okay, so you know, like that, if we have any kind of project, so we need a lot of things, and especially manpower, especially the relation with clients. Okay, for example, marketing project. Okay, if you are choose marketing field, for that you need a good communication skills, good convince power, good body language, good eye contact. Okay, and the special skills to what? Special skills to brand your product in front of them, to advertise your product in front of them, right? So that skill is most important. So any kind of project, if you are a project manager, any kind of, so that skill you require too much. If you don't have skill, how you complete your project on time? Got it? So that is most important things we required to project management. So what is the outline of that project? So first, you know, the here are given in detail. Okay, so definition of stakeholder, typical of stakeholders, क्योंकि जहां जहां आप जाओगे different stakeholders होंगे. जैसे आप स्टॉक में काम करते हो तो देयर आर डिफरेंट, सेल परचेस वाले होंगे. जब इफ यू आर वर्किंग इन फार्मा, so there are different all like that, what we say, medical representative, right? Na, they buy a number of medicines. Okay, they visit all hospitals, private and government, and they can be doctors. That is new product. If you convince your patient, so they will, so different kind of projects. Okay, and they have so types of stakeholders, management, how we how managers manage that people, how we analyze the data, and how we register them. Okay, so different kinds we have seen. So definition here is like that: people, group, or organization that could impact or be impacted by the project. That's true. What it is, people or group or organization, right? Now, if you are working in any kind of project, that means you are not single person. The people are there, the team are there, the leaders are there, the organizations, right? The name of project, we have seen a lot of project, but no one single person to prepare it. The team is required for that. So that is the people, groups, or organization that could impact or be impacted by the project, right? So in any institution, you are doing MBA, so you are not a single person doing MBA, right? The team of students, the lot of team of students are participated, right? So that is the project. It's your project, and the name of project is, what is? MBA batch 20, batch number, right? If you are, when you visit college after 10 to 15 years, you proudly say, no, I am the batch of that year, I am doing on that year. So that is right. So every project, and on that time what you do, so you elaborate that time that faculty is there, they teach or taught that kind of subjects, you are participated what much of what we say various activities and all and all. So on that means that आपने जो प्रोजेक्ट किया वो 2 साल का था, है ना? तो 2 साल में क्या किया, क्या क्या पार्टिसिपेंट किए, क्या क्या इवेंट्स किए, कितने सब्जेक्ट में पास हुए, क्या सीसीएस दिए, क्या असाइनमेंट्स दिए. गॉट इट? सो एवरी, मतलब ऐसा ही सेम हर प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन द वे इज डिफरेंट बिकॉज द working structures are totally different. Got it what I'm saying? So totally different. I'm sorry, but मुझे आज यहाँ फिर से आपको कहना पड़ रहा है कि that day
विमेंस डे, ओके, विमेंस डे के दिन आप SIP बोल रहे थे, बट आई डोंट लाइक द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, फ्रैंकली स्पीकिंग, सीरियसली आई डोंट लाइक द वे ऑफ प्रेजेंटेशन बिकॉज actually you are not prepared well. Second thing, I am telling a lot of time before starting a please share me with your PPT, share me with your SIP, so I will cooperate you how to present your topic. Got it? Sir ask you, okay, what you did your project, no one tell a single line that, किसी को भी नहीं आया, बहुत ही सिंपल था. आपको कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन अगर करना हो ना, स्पेशली आपके SIP का, सो सिंपल. अगर आपने यहाँ से मतलब दिल से अपना प्रोजेक्ट किया है, सिर्फ अतुल सिंह ने, अंकुर सिंह इज वेरी वेल, मुझे पता है, उस बच्चे ने मुझे बहुत बार कॉल किया है प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ है. बाकी किसी का भी नहीं हुआ, और बाकी ने किया भी है, इफ आई अप्रूव, लेकिन प्रेजेंट ही करना नहीं आया उनको. So that is not way. मैं आज भी बोल रही हूँ, you have a time, please share me your PPT. अगर नहीं हुआ है तो करिए, मुझे मिलिए कॉलेज में, आइए और एक अच्छा सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट करिए, अपना प्रेजेंट करिए. SIP के लिए अवार्ड रखने वाले हैं, सो प्लीज जिसका अच्छा होगा उसे अवार्ड मिलेगा, और ये बहुत जरूरी है. आप लोग करते क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है. सारी फैकल्टीज है, हम लोग तो आपको हेल्प करने के लिए है ना, सो व्हाई यू नॉट टेक अ बेनिफिट. आपको काम इतना इंपॉर्टेंट है, 2-3 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते आप प्रोजेक्ट के लिए, डेडिकेशन ही नहीं है आप में, कैसे करोगे. सो डू इट, प्लीज कम, विजिट अस, मीट अस एंड टेक द एडवांटेज ऑफ लाइक दैट. बहुत सिंपल था. अगर मैं आपकी जगह होती थी, ये है, सो मैं सिंपली बोलती थी, गुड इवनिंग, माय नेम इज सो एंड सो, my SIP topic is analytic study of administration and management of infrastructure limited, whatever, and my objective of study is 1 2 3 whatever. Why I choose this SIP, sir? Because of I have seen lot of research paper, national international journals and international journals, Scopus, ABDC. I read 10 people paper of each factors, and I found lot of people are doing previous data, working on previous data, and I find like that currently no one is doing the research or the project on that particular year basis. So that's why I choose the topic, that is your research gap literature review. I've read that kind of research paper. I find that person is doing the work, but he is doing last 15 years, previous 15 years. So currently no one is doing that kind of project. That's why I choose research methodology. For research methodology, I have doing primary and secondary data. Primary data, for primary data, I visited so and so company. I ask the question, their employee, and visit the manager and take that kind of questionnaires. You have to prepare 25 questionnaires, tell them 5 to 10 questionnaires, and data interpretation on that 3 years data I have collected. I written the name of client, sales, purchase, and the balance sheet. All of you, मैं बोल देती हूँ आपको balance sheet लगाना जरूरी है. And on that balance sheet basis, I have interpreted the data, and conclusion is like that: a company is performing very well, but due to this pandemic, the sale is down, the ratio is down. But if the manpower is going good, so definitely company is going good. That is. Thank you so much. कितना time लगा? Only 2 or 3 seconds में मैंने अपना SIP बता दिया. If you are going in flow, स्टार्टिंग से एंड तक कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, बिकॉज आप तो सारी चीजें इलेबोरेट कर रहे हो. एक हाथ क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन हमें करना ही नहीं है. नो कम्युनिकेशन स्किल्स यूज ही नहीं करना है. कैसे जॉब करोगे आप लोग? आपको प्लेसमेंट चाहिए अच्छा. सो ऐसा अगर आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो प्लेसमेंट कैसे मिलेगा बच्चों? अभी भी जाग जाओ प्लीज. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ठीक है, आप लोगों को लगता है, थोड़ा सा इरिटेट फील होता है कि टीचर्स डांटते हैं या, तो एटीट्यूड मत रखिए ना. एटीट्यूड किसे होना चाहिए? जो बहुत एक्सपर्ट है उसे होना चाहिए. आप तो अभी सीख रहे हो ना.
आपको वो पता है ना, लर्निंग नेवर एंडिंग। तो आपको आप में डिसिप्लिन कैसे आएगा अगर आपको हम डांटेंगे नहीं? तो हम आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, कोई बुरा तो नहीं बोल रहा है। इससे आप ही में इम्प्रूवमेंट होगा, राइट? यस मैम। फिर तो वो करोगे तो ही आएगा, नहीं करोगे तो मैं सीरियसली मैं अंकुर सिंह को अप्रिशिएट करूंगी। वो बंदा मुझे सुबह 7 बजे फोन करता था, 11 बजे फोन करता था, सुबह 1 बजे फोन करता था, 1:30 बजे, हमेशा उसने मुझे फोन करके सारा अपना डाटा क्लियर कर लिया। उसको डाटा क्या क्या चाहिए था, मैंने जस्ट एनालिसिस किया और फोन पे ही मैंने उसको बताया। सिर्फ उस दिन मैंने उनको देखा नहीं था, उस दिन मेरे प्रेजेंटेशंस के वक्त उनको देखा। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइज, इतना भी टाइम नहीं है, इतने बिजी हो आप। फेल हो गए, फेल होंगे सीरियसली, अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। समझ में आया आपको? नॉट यस मैम। और ये किसके लिए कौन बोल रहा है? मैं आपके लिए। जब यहाँ पे आपको फैकल्टी हेल्प करने के लिए रेडी है, मैं एवरी, जब से आपका पीएम चालू हुआ है, एफएम चालू हुआ है, एवरी लेक्चर्स में मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज गाइस वेकअप। हम लोग इसी के लिए बैठे हैं, हमारे पास कोई बच्चा ही नहीं आता है। आज सिर्फ महेश चौधरी आया था, उसको मैंने अच्छा बताया, पूछ लो उससे आप अगर फोन करके कि मैंने उसे डांटा होगा या मैंने कुछ बोला होगा। कुछ नहीं, इतना अच्छे से समझाया मैंने उसको। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे, मतलब स्पेशली फाइनेंस के बच्चे, बिकॉज फाइनेंस इज टू मच क्रिटिकल। और अगर आपको फाइनेंस में टिके रहना है ना बच्चों, तो आपको इतना वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा, इतना एडवांस होना पड़ेगा, तब जाके कमिंग ईयर्स में आप एक्सपर्ट बनोगे। फाइनेंस में एक्सपर्ट के लिए आपको घसना होगा 10 साल कंटिन्यू। आफ्टर दैट यू विल गेट कि यस मैडम क्या बोलती थी, तब आपको रियलाइज होगा कि ट्रू। ठीक है, सो डू इट यार प्लीज। और पीपीटी पे प्रेजेंट करो। अगर आपको पीपीटी नहीं दिखानी है तो जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन उससे क्या होगा, रिपीट करने से। जयश्री को पता है, जब जयश्री को मैंने कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कराया था तो जयश्री ने मुझे सिर्फ 2 ही बार कराया, लेकिन मेरा वैसा ही है, रट्टा करो। नहीं आता है ना, रट्टा करो, दैट इज गुड, बट करो। कितना बुरा लगता है ना कि आप थर्ड सेम के बच्चे हो और इन फ्रंट ऑफ अस यू आर नॉट टॉकिंग अ सिंगल वर्ड। इट्स ओके, पैंडेमिक था, ये था, लेकिन आपने इसको ना, ब्रेन को पूरा सुला के रखा, कुछ उसको वर्क ही नहीं दिया है, कुछ उससे करवाते ही नहीं हो, क्योंकि सारी चीजें एडवांस है ना। मोबाइल है, उंगलियों से काम चल जाता है। आजकल नंबर भी याद नहीं रहते किसी को, राइट ना? सो प्लीज इसे सुला के मत रखो, इसे जगाओ, नहीं तो कोई काम का नहीं। इतना एजुकेशन, इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम एजुकेशन के पीछे, और इतना नॉलेज ले रहे हैं हर सब्जेक्ट का, नॉट अ जोक। इससे नुकसान आपका होने वाला है। गॉट इट? सो प्लीज मीट मी, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। जिन्होंने अप्रूवल नहीं लिया है, आइए डायरेक्टर से मिलके अप्रूवल लीजिए, हम लोग आपके लिए है। अभी सब ऑफलाइन हो गया है, खुद होके नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। सो लेट वी स्टार्ट। सॉरी मैंने बोला, आप बोलते होंगे कि बस जब देखो तब बोलते रहते हैं, बट मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे ऐसा बिल्कुल आदत नहीं है कि मेरे बच्चे को कोई इस तरह से बोले, वो भी स्पेशली कि मैं इतनी बार बोलूं। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसे आप लोग मेरे बच्चे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को ही मिलना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स ने ही पार्टिसिपेट करना है। सो आपका और मेरा जो इंटरेक्शंस है, जो कनेक्शंस है, वो कैसा है, अच्छा है। मतलब आपको भी अगर कभी कुछ लगता है तो आप बेझिझक मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम ये ऐसा है, क्या करना है ना? सो दैट इज द रिलेशन, we said like that, the relation of stakeholder identify। आप मुझे कभी भी बोले yes मैम, मैं आपको पहचानता हूँ, या मुझे भी आप कहीं दिखे तो, so that kind of relations we need to make with stakeholders, है ना? तो ये तो इतनी बड़ी दुनिया है। अभी आप जो भी फील्ड में जाओगे, काम करोगे, तो आपको तो रिलेशन मेंटेन करना ही है सबके साथ, तभी जाके आपका प्रोडक्ट सेल होगा, या आपको हेल्प मिलेगी, या आपको जो भी चीज है ना, उसमें सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट कैसे मिलेगा? गुड कम्युनिकेशन ऑफ स्किल्स, गुड बिहेव, हेल्पिंग नेचर, कोऑपरेटिव नेचर। गॉट इट? सो देन एनालाइज द स्टेक होल्डर्स। ओके, जैसे बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, जैसे आपको लगता है कि नहीं ये जो प्रोडक्ट है ये पर्सन लेगा, तो आपको पता है कि कौन आपकी लिस्ट में कौन हाईलाइट है, कौन अच्छा स्टेक होल्डर है जिसे फोन करते बराबर वो
काम करेगा, राइट? सो दैट इज एनालाइज, आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि दैट काइंड ऑफ कस्टमर्स आ रही है। जैसे मुझे पता है कि मेरे 4-5 बच्चे हैं जो एक फोन करूंगी तो तुरंत आके मुझे डाटा देंगे या तुरंत आके मेरे साथ काम करोगे। मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, प्लीज, मुझे रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है, सो आप में से कोई भी बच्चा अगर चाहता है पेपर प्रेजेंट करना, पेपर लिखना, तो प्लीज मीट अस, एक बार करिए एंड फिर आप खुद को देखिए कि हाउ यू इम्प्रूव योरसेल्फ। जब आप किसी कॉलेज में जाके हाईलाइट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, पेपर प्रेजेंट करते हो, सो इट्स रियली रियली गुड फॉर यू। प्लीज मीट अस, प्लीज। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं चाहूंगी कि नहीं, आप में से कुछ तो भी बच्चे, मुझे सारे बच्चों में तो सभी बच्चों के लिए हूँ 100 है, बट 100 में से अगर मेरे 2 भी बच्चे आगे गए तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस, कुछ तो भी अच्छा सीखा है। पैसे तो और डिग्री मैम, पर मिल जाती है। यस, हेलो मैम, वो एग्जाम कब, मतलब जब ऑफलाइन एग्जाम होगी तब का पेपर प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं क्या आप? कौन सा? नहीं नहीं, मैं रिसर्च में जाने के लिए बोल रही हूँ आपको, रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए बोल रही हूँ। ओके मैम। इट्स अ डिफरेंट कॉलेज कॉम्पिटिशन। अभी हमारे जो फर्स्ट सेम के बच्चे हैं वो कर रहे हैं, 2 बच्चों ने किया है पेपर प्रेजेंटेशन। उन्होंने इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया, वहां पे भी उन्होंने ट्रॉफी जीती है। सो मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, मतलब बच्चों से करवाना, उनको हाईलाइट करना बच्चों को, तो वो अच्छे करेंगे तो अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा है ना। सो कल भी एक इवेंट में वो लोग जा रहे यस हैं, मैम। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती है, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन, रिसर्च पेपर होता है, केस स्टडी होती है, स्पेशली केस स्टडी प्रेजेंट करिए। तो वो कब होगा? जब आप टीचर के पास आके बैठेंगे, सिर्फ आप लेक्चर सुनते हो तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, है ना। जितने ज्यादा पीपल्स होते हैं, जैसे आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा बंदा अगर पढ़ा लिखा होगा या जितना अच्छा काम कर रहा होगा ना, तो कंपनी उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है कि नहीं, इसने ये वैसे करना चाहिए, उसने वे, बिकॉज ही इज परफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क। गॉट इट? सो एक्सपेक्टेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशंस होती है बिकॉज ऑफ द डेडलाइन फॉलो करनी होती है, तो डेडलाइन के लिए एक्सपेक्टेशन, that is most important, and develop appropriate management, right? So appropriate management means the systematic management, means अगर आपके यहाँ system है, so definitely management develop automatically. The strategies, the planning, whatever you are making in your mind, whatever the planning you are prepared, so it's going appropriate manner. Okay, no postpone, no cancellations, nothing. Right? So effectively involving stakeholders in project decisions and executions. If some kind of barriers are coming in the time of project, so that time you discuss, you call all people, meeting with them, discuss the topic, what we do next, and then you take the decisions, you do whatever the suggestions others give in, you follow the guidelines, right? So the stakeholder register, what it is exactly, मैंने आपको बोला प्रोजेक्ट में हम लोग सारे चीजें नोट डाउन करते हैं, सारी चीजें मतलब कब आया कब गया, हमने अभी आपको पूरे एक्सेल्स में भी दिखाया कि कैसे कैसे हम लोग शीट्स बनाते हैं, कैसे कैसे उसमें वर्क करते हैं। सो वो सारा डेटा क्या होता है आपका, क्या होता है, फीड होता है ना, वो सारा रिकॉर्ड में जाता है आपका डेटा कि कितने एम्प्लॉयज है, कौन क्या काम कर रहा है, किसका क्या असाइनमेंट है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ईच एंड एवरीथिंग। सो यूज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है, जो काम दिया है उससे ही फोकस करना है। अगर आपको एनालिसिस का काम दिया है तो एनालिसिस पे ही फोकस करिए कि कहीं आपका फिगर इधर से उधर तो नहीं हो गया, आपका सारा मैच हुआ है कि नहीं, है ना। प्रॉफिट ज्यादा आया तो इसका क्या कैलकुलेशंस है, ऑलवेज फाइनेंस पीपल को तो कैलकुलेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। नेक्स्ट जीएसटी, अगर किसी को मैंने जीएसटी का काम दिया रिटर्न फाइल का, तो वो सिर्फ रिटर्न ही फाइल करेगा, उसका पूरा फोकस है क्या नोटिफिकेशंस आए हैं, कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं, क्या टैक्स रेट है, ओनली फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क। सो क्या होगा, उससे आपका वर्कलोड कम होगा, उससे आपका प्रिकॉशंस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपका वर्क डे बाय डे परफेक्ट होगा। सो एवरी स्टेक होल्डर्स, एवरी
people, every organizations, every group of people need to focus on your work, and it's a team work, okay, not a single. आप बहुत सिंगली लेते हो. अभी उस दिन सर भी बोल रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार इसको बोल रहे, मैं तो रेगुलर हूँ. नहीं, सबको था वो. मैम ने भी आपको इतनी इंस्ट्रक्शंस दी. बट ओके, so so that is okay. So list of stakeholders and stakeholders groups, what it is. तो उनका क्या होता है, ग्रुप होता है ना. जैसे हमारा ग्रुप है, आपका ग्रुप है, फाइनेंस का ग्रुप है, फाइनेंस के बच्चों का ग्रुप है. सो वैसे ही ऑल ऑर्गेनाइजेशंस में हर डिपार्टमेंट का एक ग्रुप होता है. सो एंड उस ग्रुप में क्या होता है, इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट, इंटरडिपेंडेंसीज, इन्फ्लुएंस, प्रोजेक्ट सक्सेस, राइट. सो जैसे हम ग्रुप में है, जैसे उस दिन आप SIP का प्रेजेंटेशन करने आए थे, तो सब लोग जज कर रहे थे कि ये कैसे प्रेजेंट कर रहा है, वो कैसे. तो एक इम्पैक्ट आता है, कि इन्फ्लुएंस आता है कि यस मुझे भी ऐसा करना है बॉस. मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मीट मी, यू हैव अ टाइम, गिव मी अ चांस टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट, बट इट्स डिपेंड ऑन यू. आप पाओगे नहीं, आप करोगे नहीं. जितने भी बच्चे आज मेरे क्लास में प्रेजेंट है, I will take the responsibility, but तभी होगा जब आप मुझे मिलोगे. It's too simple, guys. Too simple. Got it? Not possible. Nothing is impossible. Everything is possible. But right? So information. तो हमें क्या होता है कि influence आता है कि yes, I want to do it. If someone is appreciate you for your special work, so you get yes, that is the work. I want to do it. और बुरा मानने की जरूरत नहीं है. गलती से ही तो इंसान सीखता है. गलतियां करनी चाहिए बॉस, बहुत बार करनी चाहिए. मैं तो बोलती हूँ, गलतियों से हम लोग बहुत सीखते हैं. मुझे बहुत मजा आता है गलती करने में, और मुझे कभी किसी के बात का बुरा भी नहीं लगता, और मैं मानती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला मुझे मोटिवेट कर रहा है कि यस तू और अच्छा कर, तू और परफेक्ट कर. गॉट इट. सो इंटरेस्ट आता है, इन्वॉल्वमेंट होता है. स्लोली स्लोली हमें क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है. नहीं यार, अभी नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूंगा, परफेक्ट, राइट. प्रोजेक्ट और ऐसे करने से सारे ग्रुप का वर्क जब साथ में होता है, तो ये आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होता है. यू विल अवॉर्डेड, यू विल गेट एप्रिसिएशन. So all interactions with each stakeholders or group, whether planned or not planned, initiated by project or by the stakeholders, right? So who on the project team is responsible? Of course यार, अगर आप लीडर है और आपने अगर कोई प्रोजेक्ट में वर्क किया है और अगर कुछ गलती हो जाती है, तो वो बंदे को आप नहीं बोल सकते. आप रिस्पॉन्सिबल होगा. मैनेजमेंट आपको बोलेगा नहीं, यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम responsible person because I am telling you lot of time, n number of time, but you are not doing well. You are not doing well. Got it? So Yes. yes. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So and for that, what you need, you are responsible is good. Okay, now closely related to the project communication plan. कम्युनिकेशन करिए, बात करिए. आपको बोला गया है, आप देखिए आज आपके साथ ऐसा हुआ SIP के लिए. क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप विथ यू एंड मी. सिर्फ फोन करते हो कि मैम हो गया है, मेल कर दिया है. नो, बट मीटिंग से ही काम होता है. इट्स इंडिया. हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि जब हम 10 बार जाएंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं, राइट. सो आपने ऐसा कैसा सोच लिया? विजिट करो, जाइए, मिलिए, कॉपी पेस्ट मत करिए. कुछ तो सीखने को मिलेगा. अभी तो ठीक है, आपका MCQ बेस है. क्या करोगे आफ्टर? हाँ, 4th सेम में क्या करेंगे? सब फेल होने वाले बच्चे. इसलिए मैं तो अभी से अलर्ट कर दे रही हूँ, बाबा अगर फेल हो रहा नहीं है, सिर्फ ये जितने आज प्रेजेंट है ना 16 या 15, उनके लिए मैं बोल रही हूँ. जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है मैं उनका करूंगी, बाकी किसी का नहीं. गॉट इट? अगर वो भी आप आए तो मैं किसी को फोन नहीं करूंगी. सो कम्युनिकेशन प्लान करिए, कम्युनिकेट करिए. इंटरैक्शंस जितना अच्छा होगा आपका मेरा, उतना आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होगा. अभी तो आपको प्रोजेक्ट मिला ही है, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो लाइफ का हर प्रोजेक्ट आपका सक्सेस होगा.
because you learn planning, discipline, techniques, interpretation, analysis, literature review, and all. Got it? Next. Yes. So ma'am. project initiation, one second ना. Project initiation, identify stakeholders. So प्रोजेक्ट का इनिशिएशन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिन बोला था, पूरा आपको क्राइटेरिया बताया था कि व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ, व्हाट इज द ट्री ऑफ प्रोजेक्ट. सबसे पहले हेड, उसके बाद उसके अंडर जो जितने भी पीपल होते हैं, they organize, they doing work and they reporting their HODs and head, right? So top management, viewer management, peers, resource management, managers, internal customer, external customer, governments, contractors, subcontractors, suppliers, others and all. जब आप कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी इसमें काम करते हो तो all are include, है ना, all are included. सिंपल, मैं ऑलवेज एग्जाम्पल के साथ ही बताती हूँ. तो जैसे आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें आप सिंगल इन्वॉल्व हो क्या? नहीं हो. जिस कंपनी का आप ले रहे हो वो कंपनी के सारे पीपल, है ना. आपने अगर पर्सनली जाके किया हो प्राइमरी डाटा, तो आप उनसे मिले होंगे, उनसे क्वेश्चन आयर किए होंगे, या कंपनी में गए होंगे, तब आपको पता चला होगा मैनेजर कौन है, उसके अंडर कौन काम कर रहा है, कितने पीपल वर्क कर रहे हैं, है ना, उन्हें कैसे रिपोर्ट करना है. चलिए वो भी छोड़िए, आपके कॉलेज का ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ. जैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करना है, लेक्चर्स का सारा रिपोर्ट हमारे पास, हम लोग ने जो असाइनमेंट सबमिट करने हैं, अपलोड करने हैं, जो भी वर्क दिया है वो सारा कंप्लीट करना है, सबके साथ इंटरेक्शंस रखना है, टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, है ना. सो दैट इज, मतलब 2 साल में आपको कितना सीखने को मिलेगा. ये आपका प्रोजेक्ट ही है जो आपने MBA किया, इट्स अ प्रोजेक्ट. क्या सीखा, क्या किया. तो वैसे ही मैनेजमेंट में डिफरेंट क्लाइंट के प्रोजेक्ट होते हैं. जैसे आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशन है वो कस्टमर के साथ होगा, क्लाइंट के साथ होगा. बैंक में काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपका रिलेशन क्लाइंट के साथ, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स है, डिपॉजिटर्स, उनके साथ होगा. अगर आप डॉक्टर है तो डेफिनेटली पेशेंट्स के साथ होगा, है ना. अगर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप का कोई बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली. तो क्लाइंट कितना इंपॉर्टेंट है यार, और वो डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशंस पे कि आप उसके साथ कैसे, जब भी वो आपके पास आता है तो आप उसे अच्छा कम्युनिकेट करते हो, वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. या आप जब भी किसी अपने प्रोडक्ट का, है ना, जो भी प्रोडक्ट है वो उसको आप ये कर रहे हो, तो वो हमेशा आपका प्रोडक्ट परचेस करता है, बिकॉज ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन इज गुड, योर टॉकिंग इज गुड. सो दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना. उस दिन एक भी बच्चे के चेहरे पे स्माइल नहीं था, ऐसे मुंह लटका के थे जैसे कि बहुत बड़ा पनिशमेंट दे दिया हम लोगों ने, राइट. ऐसे नहीं रहना है, एकदम स्माइल हो कि नहीं. खाना वाना खाते हो ना घर पे, कि भूखे रहते हो. ऐसे फ्रेंड्स लोगों के साथ तो बहुत दांत दिखते हैं आपके, है कि नहीं. कॉलेज में क्या दिखाने में क्या जाता है, दिखाइए एकदम ब्राइट पर्सनालिटी, एकदम स्माइलिंग फेस, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम, नहीं एकदम हेलो मैम. बारीक में पूछेंगे मैम हमारा प्रोजेक्ट व्हाट हैपेंड, क्यों ऐसा हो जाता है आपको. बोलने के लिए बोला तो मुंह से वर्ड ही नहीं निकल रहा. इतने बड़े लोगों के सामने आप इतनी स्लो से, मुझे याद, ऐसा मत करिए. वैल्यू योरसेल्फ. अपने आप की वैल्यू क्यों कम करते हो आप लोग. आप सारे यूनिक हो, यू हैव अ गुड क्वालिटी, एवरीवन इज यूनिक. बहुत अच्छे हो आप सब लोग स्मार्ट, एकदम इंटेलिजेंट, गुड पर्सनालिटी, गुड आई कॉन्टैक्ट, बट ओनली कम्युनिकेशन वीक. सिर्फ कम्युनिकेशन ही वीक है आप लोगों का. गॉट इट. सो इम्प्रूव इट. और वो इम्प्रूव कब होगा, जब आप इंटरेक्ट होगे, रोज मिलोगे, तब जाके वो डेवलप होगा. तो ऐसे ही जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें ये सारी चीजें, इंटरनल एक्सटर्नल के साथ जितना आप बात करोगे, जितना निगोशिएशन करोगे, है ना, कॉन्ट्रैक्टर के, यार मैंने लास्ट टाइम तो आपने मुझे ये प्राइस में दिया था, अभी मुझे ये प्राइस में चाहिए, तो डीलिंग करना भी आना चाहिए, है ना. स्मार्टनेस, जितना आप स्मार्ट दिखोगे, स्मार्ट सिर्फ अच्छे रहने से या इससे नहीं, तो वे ऑफ कम्युनिकेशन में भी स्मार्टनेस आना चाहिए, कंपीट करना आना चाहिए कि यस चलो हार गए, नो इशू, yours. So how we analysis stakeholders, right? So who are they? सबसे पहले तो हम करेंगे कि कौन है. अभी मार्केट में तो नए क्लाइंट्स, नए सारी चीजें अवेलेबल है ना.
सारा मार्केट क्या है, ओपन है, सारी चीजें मार्केट में नई नई है, तो उस नई चीज को हमें देखना है। क्या एनालिसिस है, अभी नए सॉफ्टवेयर आ गए, पहले सॉफ्टवेयर नहीं थे, स्पेशली फाइनेंस के लिए हमें सारी चीजें हाथ से करना पड़ता था या कैलकुलेटर थे। अभी तो एक्सेल, एडवांस एक्सेल यूज होता है, बस इधर फिगर डाले, कॉपी पेस्ट रैप किया, उसका फॉर्मूला यूज किया, विद इन अ सेकेंड में आपके सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो हाउ मच एडवांस वी आर, राइट? सो हु आर दे? अभी तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि ये 2 साल में सारा डिजिटाइजेशन हो गया है, तो कुछ भी निकालो फट से हमें हमारा गूगल बता देता है क्या है क्या नहीं, क्या कैलकुलेशन है। कुछ भी पढ़ना हो तो आपको सारी चीजें मिल जाती है, तो व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट? कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। और आपको पता है ना, उस दिन सर ने बोला था कि बहुत सारी ऐसी जितनी भी बिग कंपनीज है ना, सीरियसली मैं बता रही हूँ, जितनी भी बिग कंपनीज है उन्होंने स्पेशली बोला है कि जो बच्चों ने, मतलब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़े हैं उनको जॉब नहीं मिलेगा। अगर डिपेंड ऑन योर स्किल, डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आप कैसे आंसर्स करते हो। उन्होंने सोच लिया कि व्हाट इज बैच, अच्छा आपने बोल दिया 20 to 22 कट, वो यही नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, इफ यू हैव अ सब्जेक्ट नॉलेज, definitely they will give an opportunity to join their company. Got it? So prove it कि in this pandemic, whatever you make, you improve yourself. Got it? You improve yourself, you do lot of subject, your communication is good, proof. So that is the analysis, because they are judge, वो जज कर लेते हैं, आपके एक वर्ड से ही वो जज कर लेते हैं, ठीक है? So what are their interest, है ना, उनका इंटरेस्ट, will their interest level vary throughout the project, whatever the project we are doing, so उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस तरह से डाटा हैंडल कर रहे हो, किस तरह से मैटर, एज अ टीम लीडर आप किस तरह से टीम को हैंडल कर रहे हो, ऑल दे आर जज। एंड कैन कोलिशंस बी बिल्ड, जो भी आपका पिलर है वो स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं, उसमें आपने वर्क किया कि नहीं, द पावर, इंटरेस्ट, ग्रीड, एवरीथिंग, दे विल चेक योर एक्साइटमेंट ऑल्सो, है ना? सो दैट इज मोस्ट important. Now, project sponsors, the person or group responsible for enabling success of the project. अगर मैंने किया तो मैं सक्सेस होंगी, अगर मेरा SIP अच्छा हुआ, अगर if I present very well in front of all, so everyone appreciate me, wow, good, wonderful, absolutely amazing, तो मेहनत की है इसलिए मुझे appreciation मिला, that's why I'm success. Got it? So maybe inside but is usually outside the project, you have to prove it. Doesn't matter ये आपने क्या किया, अभी आपके पास टाइम है, तो अगर मुझे एक दिन का भी टाइम मिलता है, if I request कि sir I'm really sorry but give me a 2 days or 1 week, I will do it. And if I can, definitely मुझे मिलना ही है, but 100%, I want to spend 100% for particular that project only. So signs of that the project is complete. The one of the project, any kind of project management, okay, so has to be satisfied. Satisfaction is important. Copy paste से satisfaction नहीं मिलता। आप एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक ही एक डाटा, बट उसके लिए भी आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं होगा, क्योंकि डाटा तो चेंज होगा, डाटा चेंज होगा, आपका अमाउंट चेंज होगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, कंडीशंस के साथ फॉर्मूला लगाना तो आना ही चाहिए, राइट? So the person responsible for escalating issues that are beyond the control of the project manager, है ना, उसके साथ आपको बाकी के भी काम को देखना है, लेकिन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देनी है. सो सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग द इनिशियल चार्टर एंड द प्रोजेक्ट प्लान, व्हाटएवर आपको इनिशिएटिव लेके उसको डेवलप करना है एंड उसको सक्सेस करना है, उस प्लान को, उस प्रोजेक्ट को. You know that politics of project everywhere, but you don't listening that, you just ignore that. You have to learn a lot of things from that project and you prove, and main important thing, you need to finish on time, deadlines. Okay, so the environment, क्योंकि politics के लिए environment चाहिए, जिस environment में आप study करोगे या
सॉरी जिस एनवायरनमेंट में हम काम करोगे वहां पे अगर वैसे पीपल होंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होंगे तो वो डिफिकल्ट होता है. बट इफ यू फोकस ऑन योर वर्क सो डेफिनेटली यू प्रूफ. सो द गोल्स ऑफ ईच स्टेक होल्डर्स और ग्रुप कैसा होना चाहिए, गोल्स है ना सारे, मतलब इन्फ्लुएंस जो होता है ना, अगर आप अच्छे हो एज अ लीडर, सारे पीपल आपका सुनते हैं तो डेफिनेटली दे इम्प्रूव. अगर आप भी उनके साथ मिल जाओगे तो वो इम्प्रूव नहीं करेंगे. सो ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, सो गोल्स दैट आर ओपनली स्टेटेड और क्लियर, वॉट एवर योर गोल्स वो क्लियर होने चाहिए कि यस मैंने आज करना है, यानी करना ही है. आई वॉन्ट टू डू इट नाउ. आज मेरा 100% होना ही चाहिए. अगर मैं मुझे कोई बुक पढ़ना है और अगर मैंने सोचा कि नहीं आज मैं ये बुक पूरा पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, द डेडिकेशंस. या फिर 100 पेज पढ़ना है तो 100 पेज, जो भी आप सोचते हो उसे करिए 100 पर. अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? यही एज है आपकी सब करने की. और एक बार जो कर लिया तो लाइफ टाइम तक आपका अचीवमेंट है ना, उसको बार बार थोड़ी ना आपको करना है. सो कीप इन योर माइंड. नाउ हिडन एजेंडाज, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसे नहीं तो उसे हाइड कर दीजिए, उसे इंपॉर्टेंस मत दीजिए, उसे प्रायोरिटी मत दीजिए. प्रायोरिटी उस चीज को दीजिए जो आपको आगे लेके जाएगी. राइट? सो दैट थिंग्स यू fulfill your project. Now power is important. और आपका पावर होना चाहिए. आपका पावर यहाँ है और यहाँ है. अगर ये दोनों चीजों मिल गई है ना, ब्रेन एंड माइंड जो भी है आपका, सो क्या होगा, कोई भी आपको ब्रेक नहीं कर सकता. एंड फॉर दैट कंसंट्रेशन, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा. ठीक है, फोकस, तब जाके आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. नहीं तो बस इधर इधर आप पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप का मैसेज, आप मैम पढ़ा रही है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज चैटिंग खेल रहे हो. नॉट लाइक दैट. नाउ कल्चरल इन्फ्लुएंस लाइक दैट कि ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स may differ with regard to communications, negotiations and decision making. Okay, so communication से culture बढ़ेगा. Cultures means you are working with team. Okay, so you celebrate with their lot of occasions है ना, someone is birthday, some kinds of meetings time, some training time, you celebrate there with them. Negotiations, you have to be tell them how we do it. जब आप किसी से बात करते हैं, हम लोग फॉलो ज्यादा करते हैं ना एक मेक को, तो फॉलोइंग, राइट, डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं, तो ये सब आपको इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि अदर्स फॉलो यू. राइट? सो दैट थिंग कीप इन योर माइंड. रिलेशनशिप बिल्डिंग, ऑलवेज गुड रिलेशनशिप यू नीड टू मेंटेन, लाइक एनालाइज स्टेक होल्डर्स, एसेस इन्फ्लुएंस, कैसा इन्फ्लुएंस होता है. जैसे आपके घर में आपके पापा होंगे या मदर्स होंगी, तो आप क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं. वो कैसे बात करते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे समझाते हैं, है ना. सो यू ऑलवेज फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस. गॉट इट? सो स्टेक होल्डर्स के साथ भी, मार्केट में भी आपको आपका इन्फ्लुएंस, आपका पावर ऐसा बनाना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उससे मिलो तो वो आपको अप्रिशिएट करे, आपसे इन्फ्लुएंस हो कि नहीं, द पर्सन इज गुड. फॉर एग्जाम्पल, हम सेलिब्रिटीज को कितना फॉलो करते हैं, कितना इन्फ्लुएंस होता है ना हमारे ऊपर, उनका इम्पैक्ट. शाहरुख खान, राइट? अभी तो मुझे आपके सारे नए लोग पता नहीं है, बट कितना इन्फ्लुएंस, मतलब उनकी मूवी के लिए हम कुछ भी करते थे दैट टाइम. तो ऐसे जो इन्फ्लुएंस होता है ना, जो लीडर्स है बड़े बड़े, सो वैसा आपका भी बनाइए. और आप सब लोग बहुत अच्छे हो, सीरियसली मैं बताती हूँ, सारे इंटेलिजेंट हो, बट आप थोड़ी सी एक है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आपको इंप्रूव करनी है. क्यों डरते हो? ये सारी चीजें आपके लिए ही बनी है. सब कुछ आपका ही है, सिर्फ आपको यूज करना है. एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है, डरना किसी से नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये निकाल ही दीजिए डर. सीखिए सिर्फ, बट पेशेंस के साथ. सो अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन. जब आप किसी से बात करते हो तो सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है, व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, but the understand the expectation, what he expect from you. Define success, है ना.
जैसे आप पीपीटीज बनाओगे सारे, तो आपको प्रेजेंट करने आनी चाहिए कि व्हाई कम्स इन लाइक दैट, कि ये इतना ही अमाउंट क्यों आया है, ये ऐसा ही क्यों आया है, इसका कब ऐसा क्यों नहीं आया, अगर आया है तो इसमें क्या रीजन है, अगर ऐसा आ सकता था तो क्या रीजन है. यू नीड टू एनालाइज इट, राइट. ऑलवेज इन्वॉल्व रहिए स्टेक होल्डर के साथ, ऑलवेज उनके साथ कनेक्ट रहिए. जब भी आपको उनसे बात करनी हो, तो जो आपका इन ओवरऑल आपका जो रिलेशनशिप है किसी के भी साथ में, आपके फैमिली में, आउटसाइड में, फ्रेंड्स में, एवरीवेयर, सो आप उसे उसके साथ बॉन्ड रखिए. ठीक है. तो प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है. अगर आपने किसी से भी, क्योंकि टीम वर्क है, अगर टीम में से लीडर ही हट गया तो आपका प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होगा, है ना. सो क्वालिटीज यू हैव टू लर्न, उस क्वालिटी को आप सीखिए, उस क्वालिटी को आप इम्प्रूव करिए, सो आपको फायदा मिलेगा. देन बिल्ड अ रिस्पेक्ट. व्हाट इट इज, कि जितना आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितना आपका पावरफुल इन्फ्लुएंस होगा इन फ्रंट ऑफ द पीपल, डेफिनेटली पीपल रिस्पेक्ट यू, पीपल ऑनर यू, पीपल व्हाट व्हाट इम्पैक्ट, ऑनर यू. इम्पैक्ट बढ़ेगा आपका यार. यस, दैट इज द पर्सन. जैसे हमारे लिए होता है, नहीं यार, द पर्सन इज गुड, ही फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ही फॉलो द डेडलाइंस. Got it? So that kind of nature comes in your own. आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, सीखिए, जितना सीख से, जितनी गलतियां कर सकते हैं करिए, बट ऑनेस्ट, ऑनर्ड होना चाहिए, है ना. टेक ओनरशिप, लीडर बनिए, खुद का करिए सारी चीजें. बी प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल, ऑलवेज प्रेडिक्शन के साथ जिए कि नहीं फ्यूचर में ऐसा होगा, मैं करके दिखाऊंगा. हम लोग वैसे प्रेडिक्शन में ही जीते, एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल, बट कुछ प्रेडिक्शंस को हम प्रूफ कर सकते हैं कंप्लीट करके. नॉट ओनली कंप्लीट करके, बट कुछ प्रेडिक्शंस को हम प्रूव इसलिए कर सकते हैं कि ये मैंने जो प्लान किया था, प्लान करके आप फुलफिल कर सकते हैं. ऑलवेज, हार्डली एक या दो प्लान फेल होंगे, बट प्लानिंग अगर आप प्रॉपर करोगे तो डेफिनेटली यू विल डू इट. सो टेक अकाउंटेबिलिटी एंड मिस्टेक्स. मिस्टेक्स तो बहुत करिए, बट रिपीट मत करिए. न्यू लर्निंग है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे जब तक हम करके नहीं देखेंगे, तो आजकल के बच्चे इतने एडवांस है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग टॉय देते हैं ना उनको, तो मेरा एक भतीजा है, मतलब नीस है छोटा, तो जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो उसके लिए टॉय लेके जाती हूँ, तो वो क्या करता है पता है, एक दिन वो टॉय के साथ बहुत खेलता है, ज्यादा नहीं, एक 2, 2.5 या 3 साल का होगा वो, मे बी 3 साल का, हाँ. वो टॉय के साथ ना बहुत खेलता है, और दूसरे दिन ना उसे उसके सारे पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है तोड़ के. ठीक है. फिर उसके बाद वो क्या करता है, एक एक पार्ट को लाके उसको जोड़ने की भी कोशिश करता है कि ये उसका है, ये उसका है. सो आप देखिए, ये 3 साल का बच्चा ये सब, मतलब पहले उसे तोड़ना, फिर उसी को समेट के उस पार्ट को जोड़ना. वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपने माइंड्स को क्या कर रहा है, डेवलप. तो मिस्टेक्स ठीक है ना, बट सीखेंगे तब पता चलेगा, करने से आता है. ऐसा कोई आपको डांटने, क्या होगा, डांटेगा ना, सॉरी बोल दो यार, से सॉरी, फिनिश्ड, काम हो जाता है. सो सपोर्टिव स्टेक होल्डर्स आर essential for that, okay, project, for making your project success. Got it? So this is the guidelines, especially how you complete it, कि हाई पावर, लो, है ना. मतलब लो लेवल पे आप सीखते हो कि yes, you need to learn for that things, how you interact people, how you speak them, how you communicate them. Okay, then you manage closely, keep inform. जब तक हमें इंफॉर्मेशन सारी नहीं मिलेगी, हम लोग उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. नेक्स्ट. हेलो. यस. ओके. सो मैम, नेक्स्ट इज, आपने आज जो सेशन में, हेलो हेलो, यस. यस मैम, मुझे एक बात कहनी थी आपसे. आपने आज का सेशन बहुत अच्छा दिया हमारे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप हमें मोटिवेट कर रहे हो. मतलब हेलो, हाँ.
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा बताना था। ओके, थैंक यू। तो मोटिवेट मैं ऑलवेज करती हूँ जयश्री, आप जब पर्सनली मीट किए उस दिन भी किया। सो डिपेंड ऑन यू बेटा ना, कि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा ढीला हो, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा एकदम स्ट्रांग हो, एकदम स्ट्रांग, वो अपने पैरों पे इस तरह खड़ा रहे कि उसे कोई भी उसे बोल ना सके, उसे हर सब्जेक्ट का नॉलेज हो, जो एक्चुअली जो वो पढ़ा है। तो वो उसमें तो आपका इनिशिएटिव चाहिए कि आप कितना उसको सीरियसली ले रहे हो। इतने दिनों से मैं बोलते आ रही हूँ तो आप सीरियस नहीं थे, है ना। उस दिन जब आपको इतना सबके सामने, तो उस आपका कुछ नहीं गया, मेरा गया, मुझे बहुत बुरा लगा कि, और फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में इतना ये सुना है क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसा। बच्चों को, आप जैसे इतने अच्छे बच्चों को कोई इस तरह से बोले, है ना, तो वो भी अच्छा ही था कि आपको, लेकिन बहुत ज्यादा था। सो इट्स ओके, होता है, गलती हो गई, सीखने को मिला, दैट इज गुड। ये होना भी था क्योंकि आप जाग ही रहे थे। सो यू वेक अप, दैट इज गुड। ओके, so this is the थैंक यू सो session. मच मैम। Yes, this is the session. You are aware about it, you do it, you meet us, do whatever you want. I am always ready to motivate you, to make you best of the best, okay, and give you the best of the best. मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग पर्सनली मीट करके अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए और अच्छे से अच्छा बनिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। So यस मैम। now we stop the session because next session is ma'am. So have a good night to all of you and see you tomorrow, because tomorrow is a AFF session. Okay, ma'am. Thank you. Yes. थैंक यू मैम। Welcome.